Our today's class is for 12th. As you know, we are learning geology. Our today's class is liquid products of volcanoes. We have already discussed solid and gaseous products. Today we will try to understand the liquid products of a volcano. In the eruption of a volcano or during the eruption, three types of products, as you know, solid, liquid and gaseous, erupts out from a volcano. Now, how liquid products erupts and what are their composition or nature? During eruption, the lava is alone poured out in liquid state. As you know, the lava which pour out from the volcano or from the main conduit pipe of a volcano, when inside the volcano from the magma chamber, when this from magma chamber through conduit, this magma comes out from the crater of a volcano and it flows on the surface in the form of lava. We can also say lava flows. So lava is a liquid product which alone poured out in the liquid state. No doubt gaseous products poured out in the form of gases, clouds of gases, and solid in the form of pyroclastic material. But here the lava alone poured out in liquid state. Lava may be acidic or basic in composition, as you know. So the lava which pours out or erupts out, ejects out, is in acidic nature and basic in nature in composition. Acidic lava is light in color and have high viscosity, or we can say it is high viscous acidic type of lava, and also have higher content of silica present in them in acidic lava. While we differentiate basic lava with the acidic, basic is dark in color and shows low viscosity and also have low content of silica present in the basic lava. So on consolidation, this acidic lava produces rough surfaces, while as basic type of lava produces somehow smooth surfaces. This acidic lava which shows rough surfaces are called ropey lava, or we can also name it as Pohoho lava. Masses of solidified Porthy lava is also known as pumice, or we can say another name, scoria. Pumice and scoria are the extrusive type of igneous rocks. That means these are the rocks which are formed on the surface or outside the Earth's surface. We can say they are formed when the lava flows up to a distance or around the crater outside the Earth's crust. Those rocks which are formed outside the Earth's crust are known as pumice or scoria. These are the extrusive type of igneous rocks, while as those igneous rocks which are formed inside the volcano are known as intrusive igneous rocks. Pumice is extrusive igneous rocks, also named as scoria. This pumice has microvesicular glass, or we can say pyroclasticus, or with very thin layers. These are translucent bubble walls, just like they have bubble walls, and they are formed outside the crater, or we can also name it as scoria.
But scoria is having a little dark color than this pumice and have somehow coarse texture than this pumice. Only the difference is color, dark color and coarse texture than pumice. Same, these are almost have the same features, only these two features differ. That means color and size of particles. So if we try to understand is this liquid products of a volcano in a simple way, what are the liquid products? Basically, as you know, आप पहले ही जानते हैं, जब आतशफशान किसी जगह से निकलता है या वॉल्केनो, जब हम बताएंगे, जब हम ये वॉल्केनो कहीं से भी निकलता है, चाहे वो माउंटेन एरिया हो, प्लेन एरिया हो या ओशंस हो, ये जो लावा होता है ये एलूम निकलता है, खाली निकलता है लिक्विड स्टेट में, इसके साथ और कोई चीज नहीं होती है, चाहे गैसेस या लिक्विड्स हो या सॉलिड्स, खाली लिक्विड शक्ल में निकलता है। ये लावा जो है दो तरह का होता है, एक एसिडिक लावा होता है, दूसरा बेसिक होता है। कंपोजिशन में सिर्फ दो तरीके से दो कंपोजिशन में निकलता है। एसिडिक लावा जो लिक्विड शक्ल में निकलता है इस आतशफशान से या वॉल्केनो से, ये लाइट कलर होता है एसिडिक लावा, एक खासियत है इसकी। दूसरी ये है कि ये हाई विस्कस होता है, और तीसरी क्वालिटी है इसकी, ये इसमें हाई सिलिका कंटेंट होता है। तीन चीजें हमें याद रखने हैं एसिडिक लावा के लिए, जो लिक्विड शक्ल में निकलता है। लावा as usual it is itself liquid, और विस्कोसिटी जो हाई होने की वजह से ये एसिडिक लावा दूर तक नहीं जाता है, ये इर्द गिर्द इस क्रेटर के इर्द गिर्द सॉलिडिफाई हो जाता है, और इसका कलर जो लाइट होता है हाई विस्कोसिटी की वजह से इसके अंदर जो गैस पैकेट्स ऑफ गैस होते हैं वो बंद रहते हैं, और जो इस गैस पॉकेट्स जो है वो इसको हाई विस्कोसिटी की वजह से दूर तक फैलने नहीं देता है, ये इर्द गिर्द क्रेटर के रहता है, और इसका कलर जो है वो लाइट कलर होता है, और सिलिका कंटेंट इसमें ज्यादा होता है एसिडिक लावे में। तीन चीजें। और कंसोलिडेशन के वक्त ये रफ सरफेसेस प्रोड्यूस करता है, जब ये बन जाता है तो इसके रफ सरफेसेस बन जाते हैं इस एसिडिक लावा की वजह से। जो रॉक्स बन जाते हैं उनकी सरफेसेस जो होती है रफ सरफेसेस होती है। इसके बाद जब हम बात, और उस रफ सरफेस वाले रॉक्स को हम रोपी लावा कहते हैं या पाहो लावा कहते हैं। इसके बाद जब बात आ गई बेसिक लावा की, बेसिक लावा इसी का अपोजिट तकरीबन करीब है। आप देखेंगे एसिडिक लावा जो होता है लाइट कलर, लेकिन बेसिक लावा की जब हम बात करेंगे तो वो डार्क कलर का होता है। इसी तरह से हाई विस्कस के बजाय वो लो विस्कस होता है बेसिक लावा, और इसमें सिलिका कंटेंट भी जो है बहुत ही कम होता है, और कंसोलिडेशन पे स्मूथ सरफेसेस। क्योंकि ये जो बेसिक लावा है ये अराउंड द क्रेटर सॉलिडिफाई नहीं होता, बल्कि दूर डिस्टेंस तक जाके जब तक ये ठंडा हो जाता है तो तब तक ये दूर डिस्टेंस कवर कर लेता है, क्योंकि लो विस्कोसिटी की वजह से ये फ्लो हो जाता है दूर दूर तक बेसिक लावा। मासेस जो सॉलिडिफाइड फोर्थी लावा होता है इसको हम प्यूमाइस, ये जो एसिडिक लावा का जो सॉलिडिफाइड फोर्थी लावा जो होता है, इसके बड़े बड़े जो मासेस जो सॉलिडिफाई हो जाते हैं उसको हम प्यूमाइस कहते हैं या स्कोरिया कहते हैं। स्कोरिया और प्यूमाइस में इतनी ही डिफरेंस सिर्फ दो चीजों की है। स्कोरिया जो ये डार्क कलर एज कंपेयर टू प्यूमाइस होता है, थोड़ा डार्क कलर होता है, क्योंकि जो प्यूमाइस है अराउंड क्रेटर बन जाती है, एक्सट्रीसिव टाइप ऑफ इग्नियस रॉक होती है, वाइल स्कोरिया जो डार्क कलर की होती है ये लाइट कलर की होती है, और इसमें कोर्स टेक्सचर, जो टेक्सचर ऑफ पार्टिकल्स होता है वो कोर्स होता है इसका टेक्सचर, किस के बजाय प्यूमाइस के बजाय। आप जानते हैं ये जो एक्सट्रूसिव टाइप ऑफ इग्नियस रॉक प्यूमाइस अराउंड द क्रेटर और आउटसाइड द वॉल्केनो, जहां पे वॉल्केनो इरप्शन होगा उस इर्द गिर्द थोड़ी सी दूर
जगह पे प्यूमाइज बन जाती है, प्यूमाइज एसिडिक टाइप ऑफ रॉक। इसमें माइक्रोवेस्क्यूलर गिलास होता है, या हम कहेंगे ये जो पायरोक्लास्टिक टाइप मटेरियल सभी होता है, ये बहुत ही थिन होता है, और ट्रांसल्यूसेंट बबल वॉल्स इसमें होते हैं, क्योंकि ये जो प्यूमाइज ये एक्सट्रूसिव टाइप ऑफ इग्नियस रॉक होती है, और सरफेस पे अराउंड द क्रेटर पार्ट में ये इस जो वंटे होता है वॉल्केनो का, इसके इर्द गिर्द ये फॉर्म हो जाती है, बन जाती है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द लिक्विड प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनोज।